Hello everyone, my name is Shwani Tyagi, your teacher, and today we are going to understand Marwar, its geographical area, its region, and basically what changes it brought in Rajasthan. So when we talk about Rajasthan, it was like, before it became state, it was like divided into small kingdoms, and Marwar is, one of the strongest and one of the powerful kingdom that we can talk. Now, when we talk about Marwar, it is taken from two Sanskrit words, which is Maru and another is war. When we talk about Maru, it means desert, right? And when we talk about war, it is region. So it means the desert region. And it is situated where? Western Rajasthan. Now, let's understand Jodhpur, Marwar, and its relevance, what cultural changes it brought, and basically what nickname it got. As we know that each city was given name when it comes to Rajasthan, right? So now let's understand what name it was given. Now, let's understand the district of Jodhpur, popularly known as Sun City, was known as the ancient kingdom of Marwar. So when we talk about this, it is called Sun City. Why? Because of its temperature. Why? As I said that it is known as what? The desert region, right? Now if it is known as desert region, so it means what? Hot temperature is used to rise even above like 45 degree to 50 degrees Celsius, right? This much of temperature. Now if we are talking about temperature, so it means what? Climate change के साथ साथ में क्या आता है? हमारा cultural change भी आएगा, right? And if cultural changes are happening over there, so it means the values, the basically environment, each and everything is going to change according to that. So all these things will be covered in this slide. Now, land of death, the largest kingdom in Rajputana and the third largest of the Indian kingdoms. Now when we talk about this, it is known as the land of death. क्यों बोला जाता था इसको लैंड ऑफ डेथ? इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट था, राइट? बेसिकली इतनी ब्राइट सनशाइन होती थी यहाँ पर, राइट? एंड थ्रू आउट द ईयर इट यूज्ड टू हैपन कि जो हमारा क्लाइमेट होता था वो ड्राई होता था, सनी होता था, बहुत ह्यूमिड होता था, बहुत ही ज्यादा लाइक पीपल कैन नॉट टोलरेट, राइट? नाउ इमेजिन 700 years back, people living in such environment, right? What kind of changes they had, what cultural changes they came up with, this environment came up with, that we are going to understand, right? Even जो हम विंटर की अगर बात करें तो वहां पर भी हमारा जो environment था वो इसी की वजह से, इसी रीजन की वजह से बिल्कुल ही ऑपोजिट और बिल्कुल ही चेंज रहता था, राइट? अब उसके बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया कि हर एक सिटी को बेसिकली ज्योग्राफिकल नेम दिया जाता है. जैसे कि बात करें जयपुर की तो इसे पिंक सिटी बोला जाता है, जोधपुर की बात करें तो इसे सन सिटी बोला जाता है, उदयपुर की बात करें तो इसे सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, राइट? ऐसे ही हमारा नाम जो है जोधपुर को दिया गया है, दैट इज सन सिटी, राइट? सो दिस इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, पॉपुलरली नोन एज सन सिटी, एंड इट इज known as ancient kingdom of Marwar, right? And the land of death. Now we'll understand what this land of death is. और ऐसा क्या हुआ कि इसको it's sounding very scary है ना, कि something very different might be happening, right? तो इसको land of death इसलिए बोला जाता था. Imagine करो तुम्हारा environment इतना ज्यादा humid है, इतना ज्यादा dry है, इतना ज्यादा hot environment है, तो क्या वहां पे survive करना for common people, is it like possible, right? आज के टाइम पे तो we cannot think like that. Why? Because we are covered with gadgets and everything. But then again, उस टाइम पर लोग सर्वाइव कर रहे थे, क्या क्या टेक्निक्स वो यूज कर रहे थे, दैट विल अंडरस्टैंड. पहले समझते हैं कि ये द लैंड ऑफ डेथ एग्जैक्टली है क्या. देखो, दिस लैंड ऑफ डेथ एग्जैक्टली क्या है, तो पहले तो यहाँ पे ये क्योंकि एक्सट्रीम हीट रहती थी, जैसे कि मैंने बताया लोकेशन क्या थी, वेस्टर्न राजस्थान में था, राइट? और उसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, डेजर्ट एरिया में सिचुएटेड था वो, राइट? अब अगर डेजर्ट एरिया है तो मतलब हीट कितनी है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है. टेम्परेचर वाज लाइक राइजिंग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, राइट? उसके साथ साथ में वाटर स्कैसिटी, अगर हमारे पास इतना ज्यादा टेम्परेचर है, राइट, तो वाटर की प्रॉब्लम वहां पर होती थी. कभी कभी बारिश होती थी और उसी बारिश पर लोग डिपेंड रहते थे, राइट? दे यूज्ड टू स्टोर वाटर, टैंक्स में रखते थे, राइट? एंड दे हैड लाइक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू स्टोर दैट वाटर, राइट? वो दीज टेक्निक्स विल बी लर्निंग इन कमिंग स्लाइड्स, राइट? उसके बाद में अगर हम बात करें वाटर की स्कैसिटी अगर हमारे पास है, तो दिस टेल्स व्हाट, कि हमारा एग्रीकल्चर पर पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं वहां के लोग, राइट? सो दे माइट बी डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, they might be dependent on businesses, right? This is what this tells us. तो मतलब एग्रीकल्चर वहां पर इतना ज्यादा नहीं स्प्रेड था. आफ्टर दिस वी हैव फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स. सो दिस मीन्स व्हाट, अब अगर हमारे पास में पानी नहीं है तो दिस कंडीशन विल बी देयर. सो अनदर इशू एंड अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ लेस एग्रीकल्चर ओवर देयर. आफ्टर दिस सैंडी सोइल. अब क्योंकि हमारी जो सोइल थी दैट इज लाइक सैंडी, सो इट कुड नॉट होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, ठीक है? अगर पानी नहीं होल्ड कर सकती तो इसका मतलब क्या है कि हम वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, राइट? सो दिस वाज अनदर रीजन ऑफ
बेसिकली एनवायरमेंट, द रीजन इट वाज नोन एज लैंड ऑफ डेथ। अब इस टेम्परेचर में इस टेम्परेचर में नाउ बिकॉज वी डू नॉट हैव वाटर नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, राइट, एंड इफ एग्रीकल्चर इज नॉट देयर तो दिस मीन्स व्हाट, वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ फूड, ठीक है। तो इसी की वजह से पीपल यूज टू डाई, एनिमल्स यूज टू डाई बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए वहां पे लोग ज्यादा माइग्रेट, वहां से लोग जाने लग गए, राइट, एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज लैंड ऑफ डेथ, ठीक है। अब आगे में बात करते हैं कि लोग फिर सर्वाइव कैसे करते थे। तो हाउ डिड दे सर्वाइव, दे सर्वाइव टू द स्टेप फोल, जैसे कि हमारी बाउरीज होती थी, राइट, एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस बाउरी, तुम देखोगे कि इतना जो पोर्शन है, राइट, बेसिकली इतना डीप पानी रखा जाता था, क्यों, क्योंकि अगर फ्लैट सर्फेस पे रखेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, राइट, सो फॉर दिस रीजन दे यूज्ड टू स्टोर वाटर इन सच डेप्थ, राइट, सो वी हैव एग्जांपल इन हियर, राइट, एग्जांपल क्या है हमारे पास में, एग्जांपल है तुर्जी की झलरा, राइट, सो दिस इज एग्जांपल, दिस इज बेसिकली बाउरी दैट वी हैव, राइट। उसके बाद में अब क्योंकि हमारे पास में वी हैव लाइक फ्लैट डिस्क, ठीक है, अगर हम इसकी बात में करते हैं तो अब हमें अपने किंगडम को प्रोटेक्ट भी करना है, राइट, विल बी रीडिंग वन मोर स्टोरी अबाउट दिस। अब देखो हमें अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना है, राइट, अब वो फ्लैट सर्फेस पे तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए गई फोर्ट्स ऑन हिल्स, राइट। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास में देखो अब हमें अपना प्रोटेक्ट करना है, राइट, वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, तो उसी वे से हमें बेसिकली चीजें करनी पड़ेगी, फ्लैट सर्फेस पर घर बना नहीं सकते हैं, राइट, विल बी रीडिंग वन मोर स्टोरी रिगार्डिंग दिस। तो फोर्ट्स ऑन हिल्स वर देयर, राइट, इतना पोर्शन पर हिल बनाई जाती थी, राइट, इतना पोर्शन छोड़ा गया था और यहाँ पर हमारे पास फोर्ट्स बनाए जाते थे। इसका रीजन ये था ताकि तो एक तो हमें डिफेंड, एक तो रीजन था इसका डिफेंस का, पहला रीजन क्या है, डिफेंस, राइट, दूसरा रीजन क्या है कि डिफेंस के साथ साथ में अगर हमारे पास में कोई हमला हो भी रहा है, राइट, सो द एनिमी हैव टू लाइक क्लाइंब, ठीक है। दूसरा रीजन ये होता था कि दूर से ही दिख जाता था इफ लाइक समवन इज कमिंग, राइट, इफ द डेंजर इज कमिंग, राइट, सो पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सकता था दैट इफ एनी डेंजर इज कमिंग, सो फॉर दीज थ्री रीजंस फोर्ट्स ऑन हिल्स वर मेड, ठीक है। उसके साथ साथ में वी हैड ब्लू हाउसेस, ठीक है, कलर थ्योरी में पता है ब्लू कलर लाइट कलर होता है, राइट, तो हीट उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो थोड़ा ठंडे घर रहेंगे, राइट। सो अगर हम इसकी थ्योरी पीछे पढ़े तो हमारे पास में ये पहले कहीं हिंदुइज्म में ये कलर फॉर्म होता था, राइट, बट लेटर ऑन इट अडेप्टेड for this climate region also, right, so this is with this way they used to survive। now coming to the next, अब देखो हमारे पास में है ये, अब देखो इसमें देखोगे तुम इस फोर्ट में that it is made with 40 feet high, ठीक है, क्यों बनाया जाता था, ताकि अगर हमारे पास में there is some enemy, right, who is coming, तो उन्हें क्लाइंब करना पड़े and they can have like sufficient time so that they can protect themselves, डिफेंस के लिए बनाया जाता था, राइट। दूसरा प्रिडिक्ट किया जा सके, ऊपर से देखा जा सके कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, टू कीप एन आई ऑल्सो, सो फॉर दीज रीजंस इतना ये हिल्स पर बनाया जाता था, फोर्ट्स हिल्स पर बनाया जाता था। ब्लू पार्ट का ट्रेडिशन है, राइट, ये बेसिकली कंटेन करता था लाइम, ये कॉपर कंटेन करता था, राइट, इसीलिए साइंटिफिकली भी बेसिकली इंपॉर्टेंट था कलर, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता था, राइट, ये हेल्प करता था सन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट, सो फॉर दीज रीजन वी हैड कलर हाउसेज इन ब्लू। उसके बाद में देयर इज अनदर स्टोरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जोधपुर की बात करते हैं तो ये हमारा रिवॉल्व करता कहाँ करता है, राठौर क्लैन पे रिवॉल्व करता है, राइट। जो हमारा जोधपुर है वो हमारे इस नाम से लिया गया है, राव जोधा से लिया गया है, राइट, वो हमारे चीफ थे राठौर क्लैन से, राइट, और इन्हीं का नाम जो है जोधपुर के नाम से पड़ा है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1459। तो अगर इनकी बात करें तो इनका जो नेम है, राइट, इट केम आफ्टर मारवाड़, राइट, तो मारवाड़ की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम नाम है ये इट इज टेकन फ्रॉम राठौर क्लैन, और जो हमारा जोधपुर नाम है इज टेकन फ्रॉम राव जोधा, जो हमारे चीफ थे राठौर क्लैन के, राइट। नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट जोधपुर, जो मिला है हमें कब, 1459 में, राइट। अगर हम इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि राव जोधा कहाँ से आए थे और बेसिकली इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, राइट। तो जो इनका ओरिजिनल होमलैंड था दैट वाज कन्नौज। तो कन्नौज में क्या हुआ कि हमारे अफगान्स, राइट, बेसिकली दे केम एंड दे मेड देम टू मूव आउट ऑफ देयर प्लेस, राइट। तो जब वो माइग्रेट होकर कन्नौज से हमारे पास इधर आए, राइट, दे केम इन दिस राठौर, दीज राठौर्स केम इन दिस रीजन। तो कुछ टाइम पर बाद में क्या हुआ, उन्होंने बेसिकली कैपिटल बनाई मंडोर को, राइट। तो अब इन्होंने देखा कि मंडोर जो है इट्स लाइक फ्लैट डिस्क, राइट, तो वहां पे प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, इट दैट एरिया कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्ली, राइट। सो फॉर दैट रीजन व्हाट डिड दे डू, दे बेसिकली मूव टू जोधपुर, ठीक है। तो इनिशियली मंडोर सर्व्ड एज द कैपिटल, बट
by 1459 what happened, राठौर felt कि वहां पे सिक्योर कैपिटल बनाने की जरूरत है, क्योंकि इट वाज लाइक अ फ्लैट डिस्क, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास में डिफेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. सो देन दिस फॉर्मेशन ऑफ जोधपुर वाज सीन, द सन सिटी वाज बेसिकली नोन, ठीक है. राठौर की तो दे हैड अ गुड रिलेशंस विद ऑल द मुगल्स, ठीक है, लेकिन सबने बेसिकली अलाइनमेंट नहीं किया था ब्रिटिशर्स के साथ में, राइट, मुगल्स के साथ में. बट यस, देयर वर फ्यू रूलर्स हु अलाइन विद दीज टू. अगर हम बात करते हैं जसवंत सिंह की, तो हमें याद है कि वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे मुगल्स को, राइट. बट व्हेन इट केम्स टू रूलर्स लाइक them, they did not align, they did not agree to their policies, right, and they fought the battle, right. So this was like related to their culture also. जब उन्होंने कल्चर में इतना अडेप्टेशन कर लिया है, जब उन्होंने कल्चर को इतना समझ लिया है, and they were like going through, so their culture also, their environment also made them, we can say it made them warrior, it made them more powerful, and it made their mindset more into टुवर्ड्स दी वॉर, राइट. उसके साथ साथ में ब्रिटिश राज की बात करें तो स्टेट ऑफ जोधपुर वाज लाइक लार्जेस्ट इन राजपुताना, राइट. एरिया वाइज में अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर जो था बेसिकली इट वाज प्रपोज्ड अंडर ब्रिटिश राज, राइट. और इसके जो मर्चेंट्स थे, मारवाड़ीज थे, जो आज भी हम सुनते हैं ना मारवाड़ी, सो दे वर लाइक एट बैक द टाइम, राइट. क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं था, राइट. सो दे वर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स ट्रेड, राइट. सो दे केम टू ऑक्यूपाई द डोमिनेंट पोजीशन इन द ट्रेड इन इंडिया. सो इन 1947 व्हाट हैड दे हैड द सिचुएशन कि या तो आप बेसिकली इंडिया के साथ मर्ज हो जाइए या फिर आप पाकिस्तान के साथ हो जाइए, तो दे चोज इंडिया, राइट. सो विद दैट हमारा जो प्राइसली स्टेट था वो भी एक टाइम पर हट चुका था, राइट. नाउ कमिंग टू द फ्लैग, तो जो हमारा फ्लैग है यहाँ पर आप देखोगे सेफ्रन इज देयर, राइट. उसके साथ में वी हैव लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ये अभी हमारे पास ग्रीन है. सो दीज कलर्स बेसिकली शोज अबाउट द यूनिटी, अबाउट द पावर, right. And basically if we look at this, right, this whole, so this basically tells us about what, this tells about defense, this tells about power, राइट. तो इस फ्लैग में अलग अलग चीजें जो है सिंबल में आती है, राइट. नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जोधपुर कोट ऑफ आर्म्स, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसमें आप देखोगे यहाँ पे मेन एलिमेंट्स क्या हमारे पास रॉयल शील्ड्स है, राइट. तो ये रॉयल शील्ड्स दिखाती है पावर, राइट. वी हैव होप ओवर हियर, राइट. सो दिस सेज व्हाट, दिस टेल्स अबाउट कीपिंग एन आई, right, keeping an eye on enemies, keeping like being aware of things, right. फिर उसके बाद में हमारे पास में lion is there, right. So this lion is protecting figure, right, and it also shows us the power, right, कि defense में हम लोग काबिल हैं, and we have like all the instruments and all the things that we can fight with, right. Then crown is there, crown is showing what, crown is showing about the monarchy, right, it is showing about the kingship. Now अबाउट क्लाइमेट, एज आई एक्सप्लेन यू कि जोधपुर जो था वो हमारा बहुत ज्यादा हॉट था और सेमी एरिड था, राइट. बारिश आती थी एज, बट इतनी ज्यादा नहीं आती थी, राइट. सो इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस मैप, आपको दिखेगा कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है हमारा, राइट, दैट इज बेसिकली बिटवीन मई से लेके हमारा जून तक है, राइट. और उसके बाद में लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो दिसंबर एंड जनवरी, राइट. अब इसमें ये चीज दिखाने को समझ में आती है कि जो हमारा डिपेंडेंसी थी ऑन बेसिकली dependency थी on rain, right, that was very high, right. सारी की सारी डिपेंडेंसी उसी पर थी हमारी, which was basically becoming problem. रेनफॉल के बारे में बात करें तो हमारे पास में बहुत कम रेनफॉल थी. कहाँ से देखोगे आप, जनवरी और अगर मई से देखोगे तो बहुत ज्यादा कम है, राइट. उसके बाद मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिल रही है, जुलाई और अगस्त में, राइट. और उसके बाद में ऑलमोस्ट बंद हो जाती है कब, सितंबर के टाइम पे हमारे पास बिल्कुल बंद हो जाती है, राइट. यहाँ पे दिसंबर में, अक्टूबर में, राइट. तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास फॉल देखने को मिलता है. सो व्हेनेवर दे हैड प्रॉब्लम विद रेनफॉल, तो कहीं ना कहीं उन्हें बेसिकली बहुत ज्यादा फोटो स्टोर करके रखना पड़ता था और पूरी डिपेंडेंसी उस स्टोरेज पर होती थी. सो दे बेसिकली अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू दैट, राइट. सो टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता था कि कभी कभी बेसिकली दे हैड टू माइग्रेट आल्सो, राइट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. So this is it for today. I'll see you with the next video of Rajasthan, and I'll try to cover more geographical areas. With this, I end my today's video. Thank you so much.